Hello, I'm Matujima and watching Morning Pulse on Onbill TV. U.S. Secretary of State Marco Rubio is scheduled to visit India from May 23 to 26, during which he will travel to Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi, according to an official release from the U.S. Department of State. The White House release stated that Rubio will discuss energy security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. Before he visits India, Rubio will travel to Helsingborg in Sweden on May 22nd to attend the NATO Foreign Ministers meeting. The U.S. Secretary of State will discuss the need for increased defense investment and greater burden sharing within the alliance during the meeting. Rubio is also expected to meet his counterparts from the Arctic 7 nations to discuss shared economic and security interests in the Arctic region and the strengthened posture in the High North. The release further stated that Rubio will hold bilateral meetings with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson and NATO Secretary General Mark Rutte. Amid rising temperatures, Sanjay Kumar said that Lucknow Zoo has stepped up measures to protect animals from the heat wave. He stated that continuous water spraying is being carried out in the enclosure, while thatched roofs and coolers have been installed, especially in larger habitats, to keep animals comfortable. The zoo administration has also increased the quantity of fruits being provided to animals as part of its summer care arrangements. हाँ, मैं संजय कुमार विश्वाल, यहाँ डायरेक्टर लखनऊ जू। तो इस बार जैसे हमारे हीट वेव अप्रैल के महीने से ही शुरू हो गया है, तो इसलिए हम लोगों की भी तैयारी भी जैसे थोड़ा पहले ही अच्छे से शुरू हो गया है। तो हम लोग लगभग हर बाड़े में जो है स्प्रिंकलर की व्यवस्था किए हैं, जहाँ टाइम टू टाइम जैसे पानी पूरा मतलब फवारा की तरह छोड़ता रहता है। इसको छोड़ के जो बर्ड सेक्शन है और हिरन, इन सब सेक्शन में जैसे क्या कहते हैं छप्पर रखे हैं कि घास के छप्पर रखे हैं कि जहाँ पे अगर पानी आएगा तो ठंडी रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। इसको छोड़ के जो बड़े बड़े बाड़े हैं हमारे, खासकर टाइगर, लायन और भालू के, इन सब में कूलर की भी व्यवस्था की गई है। और बड़े बड़े बाड़ों में जहाँ पे भी पानी रखने की सुविधा है तो वहाँ पानी में मतलब पानी पूरा भर के रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जानवर जो है वहीं ज़्यादातर टाइम बैठे रहते हैं। तो ये सब व्यवस्था की गई है। इसको छोड़ के डाइटिंग में भी थोड़ा बहुत, जो कि हमारे नॉर्मली मई के महीने में शुरू होता है, तो हमारे डॉक्टरों की टीम है उनकी देख रेख में चल रहा है। तो अभी जैसे जो तृणभोजी प्राणी है उसमें फल की जैसे फल की मात्रा बढ़ा दी गई है। पहले जैसे जहाँ साग सब्जी ज़्यादा खाते थे, आजकल जैसे फल हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, इन सब दिया जाता है। और तृणभोजी प्राणी हमारे, और जो हमारे कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, तो उन लोगों का थोड़ा सा कम होता है डाइट। जैसे कोई अगर जानवर 10 किलो मीट खाता है तो अभी वो 8.5 से 9 किलो खाना खाते हैं, कि थोड़ा एनर्जी कम खर्चा होता है उनका इस टाइम में घूमना फिरना, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो Amid rising petrol and diesel prices, Karnataka Minister Priyank Kharge has accused the BJP of diverting attention from economic issues through personal attacks on Chief Minister Sitaramayya and Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar. Kharge alleged that the opposition was attempting to cover up what he termed the failures of Prime Minister Narendra Modi's economic policies. What achievement Congress has that they are celebrating 3 years of... See, we have been validated not once, for over 4 times in the by-elections with thumping majority by the people. When people are certified, why am I interested in getting BJP certificate? And who are they to certify? They ran the government for 4.5 years earlier, and you saw the certification people gave. In none of the by-elections held so far in the last 3 years, BJP has even made a dent. First, I think they should set their house in order. And we are not looking for BJP's endorsement or certification. People have certified us. People are endorsing us. People are happy with the 5 guarantees. People are happy with the economic acceleration that Karnataka has got. And I think BJP, I pity them. I think they really need to get their house in order. Sir, last 1 week, 2 times petrol price hike, sir. So that is the reason BJP is telling that we are not working. See, to hide Mr. Modi's master strokes, they are having personal attacks against our government. They are attacking Siddaramaiah Saab, they are attacking DK Saab, they are attacking us, because they want to hide the failures of Modi-nomics.
Today, what is the price of the petrol and diesel? It is crossing 100. What is rupee? It's almost touching 97 now against the dollar. What about the price rise in daily essentials? What about the price rise in daily medicines? See, this is something that they need to answer, no? Why are they hiding away from the responsibilities? What happened to all these BJP MLAs, ministers, chief ministers? Day one they took metro, they took cycle, they took two-wheeler, they rode bicycles. Now today they are back to the square one. They were supposed to follow austerity. What happened? So the Prime Minister is in the last leg of his 5 nations tour today, isn't it? How do you see that his tour and... I have been asking the same question that you have been asking as well. He has spent close to 850 crores for his foreign visits. How has it helped the country? Zero FDIs have come in this year. Foreign investments have been strategically pulling out their investments from India. No country is friendly with you. When a terrorist state like Pakistan attacks you, not one single country stands with you. You are going abroad to fix deals for Adani, not to fix the nation's interest. Otherwise, tell me, anybody else calls you Vishwaguru besides yourself? You are not able to answer one simple question of the press. You are embarrassing the nation by just walking away when somebody wants to ask you a question. Neither you answer questions here nor abroad. And you claim to be Vishwaguru, you claim that every foreign prime minister and president is your friend, but how has it actually benefited India? I request the Prime Minister through the media, please release a white paper of your Achhe Din. Please release a white paper of Make in India. Please release a white paper of Amrit Kal. Please release a white paper of Viksit Bharat for the people to know. Well, so today, sir, the entire Nation Chemists Association has gone on strike against this online medical. So let the government answer. Why do you always ask me questions that the BJP should be answering? Why is it that you expect the opposition to answer all the questions? Well, the questions that are asked to Prime Minister is how he eats mango. to you just because you support... I'm here in opposition. Yes, we are at least talking to you. We sit and answer your questions. You can ask us any question. But what about BJP people? Can you ask them any questions? Ask them these questions. Let us see what they have to say. They are the ones, right, who said that Congress misruled the country for over 6 decades. अभी तो अमृत काल है, विकसित भारत है. उनको उत्तर देने दीजिए. One white paper let them release on the economic conditions of India. Rajana said that if CM Siddaramaiah is post... That is his opinion. It does not matter. I have told you whether it is Mr. Rajana or whether it is Priyank Kharge. What we speak in front of the press does not matter. If you have anything to say, go tell it to the Congress President, go tell it to Mr. Rahul Gandhi, Mrs. Sonia Gandhi. They will take a call when it is necessary. So it does not matter what Priyank... Ahead of the upcoming India-Africa Summit in the national capital, NDMC Vice Chairman Kuljit Singh Jalal said preparations are in full swing for the event scheduled for May 28 to May 31st in New Delhi. Jalal stated that a review meeting was held virtually under the work-from-home format and expressed confidence that the NDMC would replicate its top-ranked preparations, saying through the G20 Summit and AI Summit, asserting that the civic body is fully geared up for the India-Africa Summit. आज हमारी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो नई दिल्ली में 28 से 31 मई को होने जा रहा है, उसके हमारे सभी एचओडीज की रिव्यू मीटिंग थी. ये हमारी एक वीकली रिव्यू मीटिंग प्लान रहती है, पर आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एक माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉल पे एक इनिशिएटिव लिया कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो आज हमने एनडीएमसी ने भी सभी ऑफिसर्स ने हमने वर्क फ्रॉम होम से करते मैंने स्वयं उसकी एक शुरुआत करी है. इसमें जो हमारा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, इसकी तैयारी के लिए जैसे हमने G20 की तैयारी में हम नंबर 1 रहे, हमने AI समिट की तैयारी के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल इंडिया की तैयारी के लिए हमने उस पूरे इवेंट में हम नंबर 1 रहे, और आज उसी तरह इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की तैयारी में हम नंबर 1 रहने वाले हैं। हमने चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, फ्लावर बोर्ड्स होंगे, फ्लावरिंग होंगे, हेज प्रॉपर कटिंग होगी, हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, तो आप जब राउंड अबाउट्स पे देखेंगे तो आपको रात को दिल्ली सजी दिखेगी। दिल्ली के राउंड अबाउट्स पे सब जितने भी राउंड अबाउट्स हैं उस पर लाइटिंग है, राउंड अबाउट्स पे सभी राउंड अबाउट्स पे अपलिफ्टर्स हैं। उसके बाद हमारा कहीं वाटर लॉगिंग ना हो तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा है। हमारा ICCC सेंटर हमारा पूरा तैयार है कि कोई भी कोई से भी कोई ऐसा लगता है कि कोई कॉल है, कोई कुछ है, तो हम प्रॉपर रिपोर्ट करें। कि वाटर लॉगिंग है तो उसको हम रिपोर्ट करें, कहीं ट्रैफिक जाम है तो उसको हम प्रॉपर रिपोर्ट करें। हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन स्वच्छता को लेके होटल के आसपास बाकी सभी चीज़ों पे, रोड डिपार्टमेंट, रोड्स जितने भी हैं वो सब ठीक हों, कोई पैचेस ना हो, साइनेजेस ठीक हों, भारत मंडपम को जाने वाले रास्ते सारे ठीक हों, अतिथियों को लगे, मार्केट्स हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं। फिर ये जो डिज़ाइन एक है जिसका हम डिज़ाइन जो लगाने जा रहे हैं, उस डिज़ाइन को लेके हमारी पूरी हम तैयारी करके उसको हम प्लानिंग करके हम कर रहे हैं। तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली, हमेशा हम जो भी चीज़ों उसमें आगे रहते हैं। NDMC ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल करी तो NDMC ने सबसे पहले अपनी बस शटल सेवा शुरू करी जिसमें फ्यूल सेविंग का था। NDMC ने अपने ऑटो शुरुआत करी अपने स्टाफ के लिए, अप एंड डाउन मूवमेंट करने के लिए अपने ऑटो। हमने मेट्रो से कनेक्टिविटी के लिए अपने स्टाफ और बाकी लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत करी। तो आज हमारी 16 बस शटल सर्विस भी चल रही हैं, हमारे बैटरी ऑटो भी हैं, हम कार पूल भी हम कर रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग कर रहे हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार है। हम सब लोग ई-व्हीकल्स में ही हम सब लोग घूम रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो माने प्रधानमंत्री जी की कॉल पे आज पूरा देश खड़ा हो गया है, और NDMC इनिशिएटिव लेते हुए दिल्ली सरकार के साथ इन तमाम चीज़ों को हम कर रहे हैं। सेव फ्यूल, सेव एनर्जी, इस कॉल को लेकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जब भी कोई कॉल करते हैं तो देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है, और उसी में आज वर्क फ्रॉम होम की ये शुरुआत हुई है। In a major crackdown on food adulteration, the Food Safety and Drug Administration conducted a raid at the warehouse in Anpur, where adulterated sauces were allegedly being manufactured under unhygienic conditions. FSDA Assistant Commissioner Sunil Kumar said officials received inputs about sauce production taking place on the rooftop of Shirvani's shop near Chandi Road under the jurisdiction of Meerut Gate Police Station. He alleged that excessive coloring agents and harmful chemicals including sodium benzoate were being mixed with sugar, salt, starch and carrot extract to prepare vegetable sauce in unsanitary conditions. ये सॉस की हमें सूचना मिल रही थी कि सॉस बनाई जा रही है, जो कि चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास में शेरवानी की दुकान है सरदार की, उसकी छत पे बनाई जा रही थी। और वहाँ पे ये अधिक मात्रा में कलर और केमिकल मिलाए जा रहे थे, सोडियम बेंजोएट सा और शुगर, नमक, स्टार्च और गाजर का पल्प। तो वो वेजिटेबल सॉस थी जो अनहाइजीन कंडीशन में बनाई जा रही थी। बहुत अधिक मात्रा में इसमें कलर मिला हुआ था, जो कि शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और साफ सुथरी जगह नहीं थी, वहाँ पे गंदगी भी थी, जिस वजह से उस फैक्ट्री को बंद करा दिया गया है और नमूने जांच को भेजे गए हैं। जो वहाँ सॉस रखी हुई थी बोतलों में वो सीज कर दी गई है, और जो ड्रम में थी उसे प्लास्टिक कैनों भरवा के डिस्ट्रॉय करा दिया गया है। सर, इससे क्या हानि हो सकती है? शरीर में अब ज्यादा कलर मिलाएंगे तो पाचन की समस्या भी आ सकती है, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन डिजीज होती है, हार्ट की भी हो सकती है। कलर की बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, नुकसान तो करेगा ही शरीर में। कितनी भारी मात्रा में जो पाई गई थी, कितने जो हमें वहाँ पे 30 पेटी तो 12 बोतल वाली 30 पेटी थी, और 235 किलो लगभग ड्रम में थी, जो सारी हमने डिस्ट्रॉय करा दी है। जो बोतलों में थी वो सीज कर दी गई है। रिपोर्ट आने पर वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी, जैसे भी रिपोर्ट आती है उससे आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ सप्लाई की जाएगी? ये गांव में भी करता था, ठेले वालों पे करता था, तो बहुत ज्यादा नेटवर्क जो भी था उन्होंने बताया कि गांव में आसपास में गांव में बेचते हैं। वो सब सोर्स मैंने बंद करा दी है, और पहले भी एक दूसरी जगह मैंने काम किया था, सोनू की सोर्स थी वो भी मैंने बंद करा दी थी। तो ये जो सोर्स मिलाई जा रही थी मिलाप थी खतरनाक, इसका मुख्य टारगेट क्या था? ये चाउमीन ये बहुत सस्ती क्वालिटी में सस्ती रहती है, घटिया क्वालिटी की होती है। अच्छी क्वालिटी की तो महंगी होगी, और ठेले वाले सब उसे इस्तेमाल करते हैं।
हमें ये अभियान चला के ठेले वालों पे से सबसे उन्हें भी एक बार समझा देंगे कि अच्छी क्वालिटी की लगानी हो तो लगाइए, नहीं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सबको Amid concerns over the global energy crisis, Punjab Governor and Chandigarh Administrator Gulab Chand Kataria called for greater fuel conservation, saying that saving petrol, diesel and gas would help strengthen India's economic position. Kataria urged citizens to contribute through small efforts, stressing that conserving fuel during challenging times can become a significant contribution towards the nation's economic stability. सोचता हूं कि वास्तव में अब दुनिया के सामने जिस प्रकार का संकट के समय विशेष करके पेट्रोल डीजल का और केरोसिन गैस का जो दिखाई दे रहा है, और उसके कारण से हम इसको कितना बचा सकते हैं, जितना हम बचाएंगे उतना ही भारत की जो है ना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो पेट्रोल और डीजल और गैस पे ही होता है। तो उसमें हम आज की संकट के समय अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग बचाने का प्रयास करें तो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर हर व्यक्ति जो है ना आधा लीटर भी अगर रोज बचाने का प्रयास करे तो हम देश के संकट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना देश के प्रधानमंत्री ने अपने से शुरू की। हमने भी अपने यहाँ यूटी में पहले हमने यूटी के अधिकारी और हमने शुरू किया, फिर अब जनता से निवेदन करेंगे तो वो भी इसकी पालना करेगी, और ताकि हम अपने इस सोर्सेज को जो हमारे पास नहीं है, हमको बाहर से ही लाना पड़ता है, उसको हम किस तरह से कम बाहर से मंगाएं और आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत रहें और लोगों पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है उसमें भी उसको राहत मिले। पंजाब से भी शुरुआत आप अपील करेंगे, चंडीगढ़ से तो निश्चित रूप से आज चंडीगढ़ से शुरुआत की है। अब हम आज शाम को रिपोर्टिंग लेंगे हमारे स्टाफ का और बाकी सबका क्या रहा। फिर इसके बाद हम अपने यहाँ के विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि वो अपने स्कूल में मतलब साइकिल से जाएं, और कम से कम और नहीं तो अभी बुधवार के दिन तो कम से कम वो भी व्हीकल का उपयोग न करें, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं या साइकिल से जाएं। फिर जनता से भी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ और उसके बाद पंजाब की सरकार से भी बात करेंगे कि वो भी इसमें अपना एक मिशन बनाए और देश के संकट को हम सबका संकट मान करके वो लोग भी कदम से कदम मिला करके देश के इस चुनौती को स्वीकार करने में अपनी जनता को तैयार करें। हालांकि प्रधानमंत्री की इस अपील का काफी असर देखने को मिला, लेकिन कई स्टेट्स उसको नहीं मान रहे हो, कह रहे खुद प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि देश का संकट जो है ना वो राजनीतिक पार्टी का संकट नहीं होना चाहिए। देश का संकट हम सबका संकट है। इस भावना से अगर काम करेंगे तो कोई राजनीति में वोट कम और ज्यादा नहीं होते हैं। देश सबसे प्रमुख है, पार्टियां उसके बाद है। तो मैं सोचता हूँ इस भावना को जितनी मजबूत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इससे सीखेगी कि वास्तव में देश के आए हुए संकट को हम सब लोग सामूहिक कैसे इसको फेस कर सकते हैं। During a press conference, Delhi Chief Minister Rekha Gupta lauded the Art and Culture Ministry for launching Hausan Ki Udaan, a program aimed at providing a platform for the city's youth to showcase their talent. Gupta said Delhi is filled with talented youngsters and emphasized that the initiative would take opportunities directly to local communities, allowing youth to participate without any registration fee or financial burden. मैं आज अपने आर्ट एंड कल्चर मंत्रालय को बहुत बधाई देती हूँ, मंत्री जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने दिल्ली के उन युवाओं के लिए इस कार्यक्रम को प्लान किया। हम मानते हैं कि देश की राजधानी है दिल्ली और बहुत टैलेंट है यहाँ। हर राज्य के लोग यहाँ बसते हैं, अलग अलग कल्चर यहाँ पे है और सभी लोग इतने टैलेंटेड हैं कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार ने कभी पहले इस तरह के कार्यक्रमों का लगता है कि उतना बड़ा आयोजन नहीं किया होगा जिसमें इतने लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार का प्रयास हो। यानी कि उन्हें सरकार के पास नहीं आना है, सरकार उन युवाओं के गली मोहल्लों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उन तक अपनी इस पूरे के पूरे प्लान को लेके जाएगी जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। एक भी रुपए का उनको खर्च नहीं करना है, उन्हें ना रजिस्ट्रेशन में ना किसी और चीज़ में। सरकार अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके साथ अपने फ़ोन नंबर देगी। उस पोर्टल पे दिल्ली के 16 साल से लेकर के 35 साल के युवा उस पे रजिस्टर करेंगे
अपनी वीडियोस वो शेयर करेंगे। एक ज्यूरीज़ का पैनल पूरा बैठेगा, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने पे पूरी दिल्ली में 35 जोन बनाए जाएंगे, यानी कि विधानसभा तक जा कर के उन्हीं के एरिया में वहाँ पर ही ऑडिशन सेंटर बनाए जाएंगे और लोकल बच्चे वहीं आकर के अपने अड़ोस पड़ोस में ही अपने उन ऑडिशन को दे पाएंगे, जिसमें से कि फाइनल फिर शॉर्टलिस्ट होगा। तो लाखों से हज़ारों में पहुँचेंगे और हज़ारों से फिर जब छोटे नंबर में हम पहुँचेंगे तब वो स्टेट लेवल पर उनका एक अच्छा कार्यक्रम होगा और अच्छे प्राइजेज उनको दिए जाएंगे। एक तरीके से एक पॉजिटिव क्रिएटिव माहौल इस दिल्ली शहर में इन छुट्टियों के मौसम में बच्चों को मिले, उनको काम करने के लिए एक्टिविटी मिले और सरकार का वो प्लेटफॉर्म मिले जहां ना केवल उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्राइजेस दिया जाएगा। प्राइजेस में भी हमने जो 7 कैटेगरी का ये जो कंपटीशन होगा, जिसमें सिंगिंग है, डांस है, एक्टिंग है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है और कंपोजिशन है, डिजिटल आर्ट है, पोट्री है, स्कल्पचर है। तो ये सभी कैटेगरी 7 कैटेगरी में इस पूरे कंपटीशन को डिज़ाइन किया गया है। Addressing the Tech Mahindra Impact Program, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said the state government partnered with CSR stakeholders to transform 1,000 villages and make them compliant with sustainable development goals. Fadnavis noted that VSTF fellows were deployed across the villages and credited CSR partners for playing a key role in successful transformation initiatives in Maharashtra. Maharashtra collaborated with the CSR partners to transform 1,000 villages and to ensure that these 1,000 villages are SDG compliant. VSTF fellows were deployed, and with the help of our CSR partners, we could achieve great success in transforming 1,000 villages. And out of that experience, I would like to tell you that each CSR partner wants to create an impact. What we offer to the table, it is a multiplier effect of that impact, because the CSR partners have resources to deploy, they have flexibility to deploy, they have access to technology, and we have a scale. We have the entire government administration, we have entire machinery to deploy those CSR funds in more meaningful ways. And that is why when government and CSR partners come together, mostly if you look at the government schemes, these schemes are a little rigid. We have normally ability and habit of creating schemes wherein the principle is one size fits all. That's all we have for now. Keep watching on Real TV.